Okay, let's begin with today's session now. Part, I guess it's part 7, vectors. Vectors ka, this is part 7. NCERT questions from from the NCERT at fingertips. शुरू करते हैं. So this is the next question. चलिए शुरू करते हैं. देखिए ये क्वेश्चन दिया आपके स्क्रीन पर. क्या दिया है यहाँ पर? Angle between the vectors a bar plus b bar and a bar minus b bar, where a bar is this and b bar is that. तो पहले मैं a bar plus b bar find out करूंगा and then I'll find out what is a bar minus b bar. क्या आएगा बताइए? What you will get there? a bar plus b bar. a bar plus b bar को नया नाम दूंगा p bar. a bar minus b bar को नया नाम दूंगा q bar. So this will become I minus I is actually 0I, correct? J minus minus j. Please try to answer. J, हाँ यार, plus 2j. And 4k minus 4k is actually 0k. a bar, एक मिनट, मैं ये ए बार माइनस बी बार लिखा ना, मुझे ए बार प्लस बी बार लिखना है. सॉरी, लेट मी जस्ट करेक्ट दिस. वेल दिस विल गिव मी आई प्लस आई 2i, j minus j 0j and 8k. Well, what is this? This is I minus I is 0i, j minus minus j is plus 2j and this is plus 0k. Now I have to take the dot product of this. So this is p bar and this is q bar. Px qs plus py qi plus pz qz. I hope you know this. So this will be what? ये क्या बनेगा? क्या? अच्छा, by the way, इस p bar से मुझे magnitude of p bar भी मिल सकता है ना? Can I get magnitude of p bar from this? What will be the magnitude of p bar? This is modulus of p bar or modulus of p or simply p, and it is given by the formula. क्या formula होगा जी? It is square root of px square plus py square plus pz square, right? Now that will be nothing but क्या आएगा बताइए? That is equal to square root of 2 to the 4 plus 0 plus 64. 64 plus 4 is square root of 68. I hope this is clear, isn't it? चलिए, और एक चीज, ये p होगा, उसी तरह से मैं q फाइंड आउट कर सकता हूँ. बाय द वे, अगर मैं उससे पहले px qx अगर ये फाइंड आउट कर लो, व्हाट इज px 2, qx इज 0 प्लस py इज 0, qy इज 2 एंड pz इज 8 एंड दिस इज 0. ये टोटल 0 आ गया जी. अगर ये टोटल 0 आ गया तो या तो p 0 है, या तो q 0 है, या तो cos थीटा 0 है. आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग देयर? व्हाइल से p bar डॉट q bar, ये एक फार्मूला, देखो p bar डॉट q bar के दो फार्मूले हैं, उसमें से ये एक पहला फार्मूला है और ये दूसरा फार्मूला है, बराबर है क्या? और इसमें से मुझे ये p bar डॉट q bar 0 आ गया है. I got this 0, isn't it? तो ये क्या मिल जाएगा आपको बताइए? This will give me 0 is equal to cos theta and therefore theta is equal to 90 degree, or we can say it is pi by 2 radian. So what will be the answer here? A is the answer. Is that clear to you all? Is this okay? समझ में आ गया सबको? ये चलिए अगला क्वेश्चन. लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. क्या दिया है अगला क्वेश्चन? प्लीज रीड. क्वेश्चन नंबर 26 एंड माइंड दैट इट्स अ स्टार प्रॉब्लम. क्वेश्चन नंबर 26 जो है वो स्टार 26, इट्स अ स्टार प्रॉब्लम. The summation of 2 point vectors, the summation of 2 unit vectors is a third unit vector, then the modulus of the difference of the unit vector is. यहाँ पर हमें बताया गया है कि भाई a bar, b bar and c bar ये तीनों भी यूनिट वेक्टर्स है.
अगर ये तीनों के तीनों यूनिट वेक्टर्स है तो आई कैन से दैट a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c इज इक्वल टू 1. कैन आई से सो? क्योंकि उसका ये यूनिट वेक्टर्स है, इजंट इट? अच्छा, और एक बताया गया है अपने को कि इनका जो एडिशन है समेशन ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स, मतलब ये कुछ इस प्रकार है, दिस इज a बार, ये b बार. इसको मैं बाद में ग्राफिकल तरीके से एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन फिलहाल अगर मुझे उसको एक्सप्लेन करना है तो आई विल गो विद दिस अप्रोच कि भाई a बार प्लस b बार इज इक्वल टू c बार, द समेशन ऑफ टू वेक्टर्स is equal to the third vector. Now after writing this step, this is an important step. After writing this step, I will take the dot product of both of these. I will take SDP. SDP बोले तो self dot product. इसका जब मैं self dot product लूंगा, हमने ये characteristics of vectors में देखा है कि self dot product is the square of the magnitude. Self dot product is, ये देखिए ये है self dot product. So if I take this dot product of this, what am I going to get there? This will give me, ये अगर मैं इसको ओपन कर लूंगा तो क्या मिल जाएगा बताइए? This will give me, yes please tell me. ये a bar dot a bar, then this is a bar dot b bar, then this is b bar dot a bar and b bar dot b bar. I hope you remember that. ठीक है? So this will give me what? ये मुझे दे देगा a bar dot a bar plus a bar dot b bar plus b bar dot a bar plus b bar dot b bar. Now self dot product is square of the magnitude, मतलब मॉड्यूलस ऑफ c का स्क्वायर. यहां पर भी वही होगा. बाय द वे द सेल्फ डॉट प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव, मतलब इधर उल्टा पुल्टा चलता है. तो ये बनेगा मॉड्यूलस ऑफ a बार का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a बार डॉट b बार प्लस b बार डॉट b बार इज b स्क्वायर, या मॉड्यूलस ऑफ b बार का स्क्वायर. दिस इज c स्क्वायर. नाउ a इज 1, b इज 1, c इज 1, तो ये आएगा 1 प्लस, अच्छा बाय द वे ये क्या बनेगा बताइए? व्हाट इज दिस गोइंग टू गिव मी? दिस इज नथिंग बट ab cos थीटा, करेक्ट? एंड दिस टू विल बी एज इट इज, प्लस b स्क्वायर इज 1 का स्क्वायर, c स्क्वायर इज 1 का स्क्वायर. सो दिस विल गिव मी 1 प्लस 1 2, उधर जाके बनेगा -2, 1 minus 2 is -1 and this is 2. Now a is the modulus of a bar, मतलब उसका मैग्नीट्यूड जो कि 1 है, b is उसका मॉड्यूलस 1 है and this is cos थीटा. Therefore what is cos थीटा is equal to, cos थीटा is equal to -half. ऐसा कौन सा एंगल है कि जिसका कोसाइन रेशियो -half है? या cos थीटा is equal to -half, ये मुझे मिल गया. cos थीटा is equal to -half, ये मुझे मिल गया किसी तरह से. इसे मैं इधर यूज करूंगा क्योंकि उन्होंने पूछा है व्हाट इज द मॉड्यूलस ऑफ द डिफरेंस ऑफ द यूनिट वेक्टर्स. डिफरेंस का मॉड्यूलस चाहिए, तो इसलिए मैं बोलूंगा कंसीडर दिस, इसको कंसीडर करेंगे. एंड आई विल टेक द डॉट प्रोडक्ट, आई विल टेक द सेल्फ डॉट प्रोडक्ट ऑफ दिस. तो इसका सेल्फ डॉट प्रोडक्ट मतलब क्या बनेगा बताइए? दिस इज नथिंग बट a बार डॉट a बार. व्हाट इज a बार डॉट a बार? इट इज a स्क्वायर. ठीक है, इसको हम डायरेक्ट स्क्वायर भी कर सकते हैं, -2 टाइम्स a बार डॉट b बार प्लस बी स्क्वायर. जो हमने किया था ये प्लस वाला था, ये माइनस वाला उसी प्रकार आएगा. डिड यू अंडरस्टैंड दैट? ठीक है. अब ए स्क्वायर क्या है? 1 है. -2 टाइम्स ए बार डॉट बी बार क्या होता है जी? ए बी कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर. अब ए स्क्वायर क्या है? बी स्क्वायर की जगह पर भी मैं 1 लिख सकता हूँ यहाँ पे डायरेक्टली. दिस इज फाइन. ओके, तो ये क्या बन जाएगा? दिस इज लाइक 1 प्लस 1 2, 2 minus 2 टाइम्स a is 1, b is 1 and cos थीटा is -half. ये 2 भी गेट्स कैंसिल. अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, समझे क्या? तो ये बनेगा 2 प्लस 1 दैट इज 3. सो मॉड्यूलस ऑफ a बार माइनस b बार का जो स्क्वायर है वो 3 है. तो इफ आई टेक द स्क्वायर रूट ऑफ दिस, दिस विल गिव मी मॉड्यूलस ऑफ a बार माइनस b बार व्हिच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3. सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर हियर? द करेक्ट आंसर विल बी √3. सो द आंसर इज हियर. कितना आएगा ये आंसर? It is A is the answer here. Any doubts about that? Commutative law. हाँ, that's right. और यहाँ पे और एक चीज, ये वाला फॉर्मूला इसके बाद आपको याद रखना पड़ेगा. हाउ डू आई राइट सेल्फ डॉट प्रोडक्ट और मॉड्यूलस ऑफ a बार प्लस b बार का स्क्वायर इज दिस. दिस इज इन द डॉट प्रोडक्ट फॉर्म. आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल. आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल. इज दिस ओके? Is that clear to you all? Any doubts? ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं.
क्वेश्चन नंबर 28 देखिए क्या दिया है यहाँ पे। इफ मॉड्यूलस ऑफ ए बार इज 3, मॉड्यूलस ऑफ बी बार इज 4, मतलब उनके मैग्नीट्यूड्स दिए हैं, देन द वैल्यू ऑफ लैम्बडा फॉर विच ए बार प्लस लैम्बडा बी बार इज परपेंडिकुलर टू ए बार माइनस लैम्बडा बी बार। अगर ये परपेंडिकुलर है तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा जी, राइट? अगर ये दोनों परपेंडिकुलर है तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा ना। whenever two vectors are perpendicular to each other, in their dot product is 0, correct, isn't it? मुझे लैम्बडा का वैल्यू चाहिए, I want to find out what is लैम्बडा का वैल्यू। now let me just open this bracket, ये ब्रैकेट अगर ओपन करेंगे तो क्या मिलेगा, a bar dot a bar is a square, फिर ये आएगा, एक्चुअली इसको भी अगर मैं एक्सपैंड कर लूं तो वो जो हमारा a प्लस बी ए माइनस बी होता है उसी टाइप का आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर माइनस लैम्बडा टाइम्स बी स्क्वायर, यही आएगा सेम। समझ में आ गया, isn't it? तो इसका मतलब है व्हाट विल बी, लैम्बडा स्क्वायर उधर चला गया तो लैम्बडा बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एंड देयरफॉर लैम्बडा इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, एज सिंपल एज दैट। लैम्बडा इज इक्वल टू, सॉरी लैम्बडा स्क्वायर आएगा ना, ये इज आल्सो लैम्बडा स्क्वायर, तो लैम्बडा स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर एंड व्हाट विल बी, लैम्बडा इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ ए बार अपॉन मॉड्यूलस ऑफ बी बार, करेक्ट ना, टेकिंग द स्क्वायर रूट। तो यहाँ पर मॉड्यूलस ऑफ ए बार कितना है 3, मॉड्यूलस ऑफ बी बार कितना है 4, एंड दैट इज द आंसर। इजी है, वेरी इजी, सही है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 के बाद मैं 32 के लिए जा रहा हूँ। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 29, 30 एंड 31 इज योर बाय डिफॉल्ट होमवर्क। क्या समझे, देखिए, well it says let a bar b bar and c bar be the vectors with magnitudes 3 4 and 5, मतलब a का मैग्नीट्यूड, b का मैग्नीट्यूड, c का मैग्नीट्यूड रिस्पेक्टिवली, एंड a bar plus b bar plus c bar is 0 bar, मतलब दे आर फॉर्मिंग एक्चुअली अ क्लोज्ड ट्रायंगल। तीनों का रिजल्टेंट 0 है, तीनों का रिजल्टेंट 0 कब आ सकता है भाई, देखिए गौर से, इट कैन बी लाइक दिस, दिस इज a bar, दिस इज b bar and this is c bar. So if I'll say a bar plus b bar plus c bar is equal to 0 bar, इधर से इधर जाओ, इधर से इधर जाओ, इधर से इधर आओ, so you get the 0 displacement. Do you understand that? ठीक है, then the value of a bar dot b bar plus b bar dot c bar plus c bar dot a bar is equal to, I have to find out what is this value. कोई नहीं, अगर ये है तो I'll take the self dot product of all the sides, इसका सेल्फ डॉट प्रोडक्ट इज द स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड। अब आप इसको मुझे लिखने से पहले ये बताइए व्हाट इज, अगर मैं सिर्फ उसको स्केलर फॉर्म में लिखता हूँ, मतलब a प्लस बी प्लस सी या फिर x प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट स्क्वायर, क्या होता है रे, डू यू रिमेंबर दिस? करेक्ट, इट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। आई होप यू नो दिस। हेलो, तो इसका सेल्फ प्रोडक्ट भी उसी तरीके से हम लिखेंगे, इट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स, ए भी नहीं होगा, ए बार डॉट बी बार होता है, प्लस बी बार डॉट सी बार होगा प्लस सी बार डॉट ए बार होगा, एंड दैट इज इक्वल टू 0। नाउ ए इज 3, तो इसका स्क्वायर आ जाएगा 3 3 जा 9, 4 4 जा 16 एंड दिस इज 25, इज प्लस 2 टाइम्स a bar dot b bar is b bar dot c bar plus c bar dot a bar is equal to 0. So 2 times a bar dot b bar plus b bar dot c bar plus c bar dot a bar is equal to minus 50, and therefore a bar dot b bar plus b bar dot c bar plus c bar dot a bar is equal to minus 25, and that's the answer. Easy? Any doubts about that? Is this very clear? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। What are they saying here? If a bar modulus of a bar is equal to modulus of b bar is equal to 1, that means these are unit vectors. इसका मतलब क्या है कि भाई ये यूनिट वेक्टर्स है। Modulus of a bar is modulus of b bar, and modulus of a bar plus b bar is root 3.
then the value of this is, इसका वैल्यू चाहिए. I'll take this over here. Open. What do you get there when you open this? This will give me 3 to the 6a square. Okay. इधर क्या आएगा? Plus 15 a bar dot b bar minus 8 b bar dot a bar minus 20 b square. Well, when you combine these two, ये क्या मिलेगा? क्योंकि it is commutative ना, अगर इसको combine करेंगे तो this will become 6a square plus 7a bar dot b bar minus 20b square. सही है? Okay. Now that is equal to, मुझे इसके magnitudes पता है, so this will become 6 times 1 square. सही है? Plus 7a bar dot b bar, ओके, माइनस 20 इंटू 1 स्क्वायर. ठीक है. अभी अगर मुझे ये चाहिए तो यहाँ पर मुझे a bar dot b bar इधर से मिल जाएगा, बिकॉज आई एम गिवन दैट मॉड्यूलस ऑफ a bar प्लस b bar इज इक्वल टू √3. आई विल टेक द सेल्फ डॉट प्रोडक्ट. सेल्फ डॉट प्रोडक्ट इज स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड. इसका क्या आएगा स्क्वायर बताइए? इसको स्क्वायर करके क्या आएगा बताइए? इसको स्क्वायर करके, अरे ऐसे ही इसका सेल्फ डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं ना, जो प्रीवियस केस लिए हमने किया था. इसको स्क्वायर करो और इसको भी स्क्वायर करो, तो दिस विल बी नथिंग बट a स्क्वायर plus 2 times a bar dot b bar plus b square is equal to √3 का square is 3. A square is 1 plus 2 times a bar dot b bar I'll keep as it is plus b square is also 1 is equal to 3. So 2 times a bar dot b bar is equal to 3 minus 2 is 1 and therefore a bar dot b bar is equal to half. Now यहाँ पर वो a bar dot b bar substitute कर लूँगा. So this becomes 6 plus 7 upon 2 minus 20. That is equal to 7 upon 2 minus 14. So that will be equal to 7 minus 28. That is minus 21 upon 2 and that is the answer. So B is the answer there. Is this clear to you all? Is this okay? Easy है? समझ में आ रहा है? Sure? चलिए आगे बढ़ते हैं. Question number 34. Easy type का है देखिए. It's a star problem. A bar, B bar, C bar are perpendicular to B bar plus C bar plus A bar and A bar plus B bar respectively. Respectively का मतलब है A bar is perpendicular to B bar plus C bar, B bar is perpendicular to this and C bar is perpendicular to this. अगर वो perpendicular है तो उसका डॉट प्रोडक्ट जीरो आएगा. अगर वो perpendicular है तो उसका डॉट प्रोडक्ट जीरो आएगा. उसका डॉट प्रोडक्ट जीरो आएगा. Did you understand that? ठीक है. And if modulus of a bar plus b bar is 6, modulus of a bar plus b bar is 6, modulus of b bar plus c bar is 8 and modulus of c bar plus a bar is 10, then what is modulus of a bar plus b bar plus c bar is equal to? तो मुझे ये find out करना है ultimately. This is given to me, this is given to me and let me see how do I take, how do I make use of all these things. ठीक है. तो इनको मैं open करूंगा और इन तीनों को add कर दूंगा. अगर मैं इन दोनों को add कर दूं, that means this plus this plus this, तो RHS में तो मुझे जीरो ही मिलना है. Are you understanding what I'm saying there? RHS में मुझे जीरो ही मिल जाएगा. तो if I'll add this, what am I going to get there? Modulus of a bar. इसे अगर मैं सेल्फ डॉट प्रोडक्ट ले लूंगा तो क्या बनेगा? क्या? A bar dot b bar plus a bar dot c. हाँ, I'll just add this a bar dot b bar plus a bar dot c bar. ये हो गया. This is b bar dot c bar plus b bar dot a bar, b bar dot c bar, b bar dot a bar, and this is c bar dot a bar plus c bar dot b bar. ये आ गया. Is equal to 0 आएगा मुझे. Correct. Now this is a bar dot b bar दो बार आ रहा है. एक बार इधर आ रहा है और एक बार इधर आ रहा है. So that is 2 times. ये भी दो बार और ये भी दो बार, क्योंकि उल्टा पुल्टा चलता है. डॉट प्रोडक्ट में उल्टा पुल्टा चलता है. सो दिस इज बेसिकली क्या आएगा? ये बेसिकली ये आएगा therefore 2 times a bar dot b bar plus b bar dot c bar plus c bar dot a bar is equal to 0. करेक्ट. अब ये 2 भी उधर जाके डिवाइड करेगा तो वो भी 0 ही आएगा. डिड यू अंडरस्टैंड दिस? ये आ गया सबको समझ में? ठीक है. चलिए इसी के साथ अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो क्या मिलेगा मुझे? इसका सेल्फ डॉट प्रोडक्ट अगर मैं ले लेता हूँ, ये क्या आएगा? सेल्फ डॉट प्रोडक्ट. दिस विल बिकम a स्क्वायर 2 times a bar dot b bar plus b square is equal to 36.
इसका क्या आएगा, बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स बी बार डॉट सी बार प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 64, और इसका क्या आएगा, सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स सी बार डॉट ए बार प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 100। ऐड करो इन सबको, अगर इन सबको ऐड करेंगे तो क्या बनेगा बताइए ना। दिस इज ए बार वंस, गौर से देखिए प्लीज, दिस इज ए बार एक बार और एक बार, मतलब 2 टाइम्स ए स्क्वायर। दिस इज बी स्क्वायर दो बार, बी स्क्वायर एंड बी स्क्वायर, तो दो बार हो गया डी स्क्वायर, समझ में आ गया, isn't it? Now this is c square 2 times, ये एक और ये एक, तो यहाँ पर 2 टाइम्स c स्क्वायर भी आ गया। Did you understand? अच्छा, बाकी 2 टाइम्स a बार डॉट b बार, 2 टाइम्स b बार डॉट c बार एंड 2 टाइम्स c बार डॉट a बार, ये तो है ही, सो 2 टाइम्स ये सब कुछ आएगा, इज इक्वल टू RHS में मुझे 1 2 और 3 ये तीनों ऐड करने पड़ेंगे। Now this plus this is 100 and 100 plus 100 is 200. So what shall I write here? By the way, I'll write this as 200. सही है, ये 2 इधर डिवाइड करेगा तो ये आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बार डॉट बी बार प्लस बी बार डॉट सी बार प्लस सी बार डॉट ए बार इज इक्वल टू 100। सही है ना, isn't it? और अब मुझे क्या चाहिए, देखो मुझे चाहिए ये, तो मैं इसका सेल्फ डॉट प्रोडक्ट कंसिडर करूंगा। कंसिडर दिस, ये क्या आएगा बताइए, ये क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बार डॉट बी बार प्लस बी बार डॉट सी बार प्लस सी बार डॉट ए बार, ये आएगा इसका। नाउ यू जस्ट ओपन दिस, इसको हम कैसे लिखेंगे पता है, आई विल राइट दिस एज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस, ये दो बार है ना, तो उसमें से एक बार यहां पर मैं लिखूंगा ए बार डॉट बी बार प्लस बी बार डॉट सी बार प्लस सी बार डॉट ए बार, ये एक बार, और एक बार ए बार डॉट बी बार प्लस बी बार डॉट सी बार प्लस सी बार डॉट ए बार। ठीक है, अब यहां पे गौर से देखिए, लुक एट दिस वेरी केयरफुली, दैट दिस थिंग इज एक्चुअली दिस थिंग, राइट ना, and look at this carefully, this thing is actually this thing, is it not? यही है ना, तो सब्स्टिट्यूट करिए ना, सो दैट इज इक्वल टू, पहला जो रेड वाला ब्रैकेट है उसका वैल्यू 100 है और दूसरा जो ब्रैकेट है उसका वैल्यू 0 है। सो व्हाट इज मॉड्यूलस ऑफ ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार ब्रैकेट स्क्वायर इज 100, and if I take the square root of this, so that will be equal to 10. So what is the answer here? 10. So is this okay? स्टार है, स्टार, समझ में आ गया सबको? Did you understand that? The next question I'll go for. Yes. ये रहा आपके स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन, ये रहा आपके स्क्रीन पर, क्या दिया है, if a bar plus b bar are two non-zero vectors, non-zero vector से मतलब उसका मैग्नीट्यूड जीरो नहीं है, then a bar plus b bar dot a bar minus b bar is equal to, just open this bracket, what is a bar dot a bar, a square, a, yes, a square minus b square, करेक्ट है, या तो फिर मैं इसको मॉड्यूलस ऑफ ए बार का स्क्वायर माइनस मॉड्यूलस ऑफ बी बार का स्क्वायर ऐसे भी लिख सकता हूँ, दैट इज द आंसर। तो एक्चुअली ये एक रेडीमेड फॉर्मूला है, आई होप यू अंडरस्टूड दैट, यस और नो। अगला क्वेश्चन, द नेक्स्ट क्वेश्चन आई विल गो फॉर, ये रहा आपके स्क्रीन पर, क्या दिया है देखिए, व्हाट इज गिवन, मॉड्यूलस ऑफ ए बार माइनस बी बार इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ ए बार इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ बी बार इज इक्वल टू 1, देन द एंगल बिटवीन ए बार एंड बी बार इज, देखिए मुझे इन दोनों का मैग्नीट्यूड 1 है ये पता है और इसका मॉड्यूलस भी 1 है, तो आई विल जस्ट टेक द सेल्फ डॉट प्रोडक्ट, क्या मिलेगा मुझे सेल्फ डॉट प्रोडक्ट लेके बताइए, ए स्क्वायर माइनस 2 ए बार डॉट बी बार प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको भी स्क्वायर कीजिएगा, इट इज 1, करेक्ट है, तो व्हाट इज मॉड्यूलस ऑफ ए बार इज 1, सो व्हाट विल बी ए स्क्वायर, 1 का स्क्वायर मतलब 1 माइनस 2 टाइम्स ए, इट इज ए बी कॉस थीटा,
ए बी कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर इज 1, मॉड्यूलस ऑफ बी बार इज 1 तो बी स्क्वायर भी 1 होगा, इज इक्वल टू 1। दोनों तरफ से ये 1 कैंसिल हो जाएगा, करेक्ट ना? So this will become 1 minus 2 times a is nothing but magnitude of a bar, that is modulus of a bar, that is modulus of a. So यहाँ पर मैं a के जगह पर 1, b के जगह पर 1 and this is cos theta is equal to 0. तो is equal to 0 के जगह पर मैं उसको RHS में भेज दूंगा. That means what is cos theta is equal to half. ऐसा कौन सा एंगल है? इस थीटा इज इक्वल टू, इसमें से कौन सा एंगल है ये? विल बी 60 डिग्री ना? Theta is equal to 60 degree, that is equal to pi by 3 radian. So what's the answer here? A is the answer. Any doubts about that? Is that clear? अच्छा, उसको अलग तरीके से भी लिख सकते हैं, ग्राफिकली भी मैं इसको लिख सकता हूं। देखिए, अगर ये है A बार, अगर ये है A बार और ये है B बार, अगर B बार ऐसा है तो B बार के एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में होगा माइनस B बार। If B बार इज डाउनवर्ड, माइनस B बार इज अपवर्ड। और ए बार माइनस बी बार को मैं लिख सकता हूं ए बार प्लस माइनस बी बार, समझे? और तब जाके ये बराबर ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा। दिस इज ए बार, दिस इज माइनस बी बार, तो ये होगा तुम्हारा ए बार माइनस बी बार। डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड हियर? समझ में आ गया? कंफ्यूज्ड? देखो ना, अगर ये ए बार है, प्लीज चेक हियर, आप गौर से देखिए यहाँ पे कि भाई अगर एक वेक्टर ए बार ऐसा है, ठीक है, और बी बार इस तरह का वेक्टर है, अगर बी बार इस तरह का है तो माइनस बी बार इसका एग्जैक्टली अपोजिट आएगा, है ना? अच्छा, मुझे दोनों का सब्ट्रैक्शन चाहिए, ए बार माइनस बी बार, तो मैं इसे लिखूंगा ए बार प्लस माइनस बी बार। नाउ आई विल यूज द ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पहला वेक्टर ले लो, ले लिया, दूसरा वेक्टर ले लो, ले लिया माइनस बी बार, और तब जाके तुमको उसका ट्रायंगल लॉ से the resultant of two vectors is given by third vector which is drawn from the starting point of the first vector to the end point of the last vector. तो ये होगा तुम्हारा रिजल्टेंट। रिजल्टेंट मतलब ये होगा तुम्हारा ए बार माइनस बी बार। अंडरस्टूड? समझ में आ गई बात? इज दैट क्लियर? तो इस तरह से अब ये इक्विलैटरल ट्रायंगल, क्योंकि ये भी 1 है, ये भी 1 है और ये भी 1 है, तो ये तब पॉसिबल है जब ये एंगल 60 डिग्री है। बट दिस इज तो ए बार एंड दिस इज माइनस बी बार। अगर माइनस बी बार इज मेकिंग 60 डिग्री एंगल, तो बी बार इज ऑल्सो मेकिंग, बी बार इसके एग्जैक्टली अपोजिट होगा। सो अगर ए बार को मैं ऐसे यहां पर प्लेस कर दूं, तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए बार एंड बी बार? क्योंकि यही सेम वेक्टर, सेम मैग्नीट्यूड, सेम डायरेक्शन आई एम कीपिंग ओवर हियर। तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए बार एंड बी बार? अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा, एंड दैट वे आल्सो आई विल गेट द सेम आंसर। नाउ दिस इज द ग्राफिकल वे ऑफ सॉल्विंग इट एंड दिस इज द एनालिटिकल वे ऑफ सॉल्विंग दिस। आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। मुझे पता है अभी ग्राफिकल आपको ज्यादा जच नहीं रहा है या ज्यादा कुछ फिट नहीं हो रहा है, इसलिए आप लोग ये, मैंने आपको पहले ये एक्सप्लेनेशन दिया, लेकिन धीरे धीरे व्हेन यू विल गेट यूज्ड टू दिस, तो आपको ग्राफिकल भी आसान लगने लगेगा। इज दैट फाइन टू यू ऑल? इज दैट फाइन विद यू ऑल? या, आई विल प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। कम ऑन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इसको मैं हाफ स्टार क्वेश्चन बोलूंगा। क्वेश्चन नंबर 38। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, ए बार डॉट ए आई कैप ब्रैकेट स्क्वायर प्लस ए बार डॉट जे कैप ब्रैकेट स्क्वायर प्लस ए बार डॉट के कैप ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू। इसके लिए मुझे एज्यूम करना पड़ेगा, सो आई एज्यूम लेट ए बार इज इक्वल टू दिस, लेट ए बार इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। अगर ए बार ऐसा है तो क्या आप मुझे मॉड्यूलस ऑफ ए बार का स्क्वायर बता सकते हो कितना आएगा? इट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। ठीक है, अब मुझे अगर ए बार डॉट आई कैप चाहिए तो वो कैसे बनेगा? ए बार डॉट आई कैप, मुझे यहाँ पर ए बार डॉट आई कैप चाहिए, तो ए बार आई टेक ए बार इज एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के इज डॉटेड विथ आई कैप। आई कैप मतलब इट इज 1 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप। इज दैट ओके? अब जब मैं इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेना है तो मुझे प्रोडक्ट लेना पड़ेगा इसका इसके साथ, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ। तो क्या आता है बताइए? इट बी, बोलिए, x इंटू 1 प्लस वाई इंटू 0, करेक्ट ना, प्लस z इंटू 0, पी एक्स क्यू एक्स प्लस पी वाई क्यू वाई प्लस पी जेड क्यू जेड। हेलो, तो आंसर क्या आएगा ए बार डॉट आई कैप का? इट्स ओनली x।
क्योंकि ये 0 है और ये भी 0 है. सो व्हाट विल बी a bar dot I cap का स्क्वायर? इट इज x स्क्वायर. सही है. सिमिलरली ओपन योर माउथ. हा नहीं, बताओ यहाँ पे क्या आएगा ये आंसर. व्हाट विल बी a bar dot y j cap? ओके, xi plus yj plus zk is dotted with a, very good, plus j plus k. That will be nothing but x into 0 plus y into 1 plus z into 0 k cap. सही है. So what will be a bar dot j cap is y. उसका स्क्वायर आएगा y स्क्वायर. समझ में आ गया. And similarly what will be a bar dot k cap is equal to a bar dot z square. Correct, directly. So what will be the required expression? The required expression is a bar dot I cap का square plus a bar dot y cap j cap का square plus a bar dot k cap का square. मतलब in short मुझे ये तीनों ऐड करने हैं. So this is a bar dot I cap का square plus a bar dot j cap का square plus a bar dot k cap का square, and that will give me x square plus y square plus z square, and that is actually a square, क्योंकि मॉड्यूलस ऑफ ए बार अगर ये है, सो इज दैट इक्वल टू ए स्क्वायर, या मॉड्यूलस ऑफ ए बार का स्क्वायर, या मॉड्यूलस ऑफ ए का स्क्वायर, और सिंपली ए स्क्वायर. हेलो हेलो. सो व्हाट विल बी द आंसर? डी. एनी डाउट्स अबाउट दैट? हाफ स्टार. दिस इज हाफ स्टार. आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल. वेरी गुड. क्वेश्चन नंबर 42. एम आई गोइंग वेरी फास्ट? समझ में आ रहा है ना? मॉड्यूलस ऑफ, गौर से देखिए, अगर मॉड्यूलस ऑफ ए बार प्लस बी बार इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ ए बार माइनस बी बार, देन एंगल बिटवीन ए बार एंड बी बार इज, कुछ नहीं, दिस इज गिवन टू मी. आई जस्ट टेक द सेल्फ डॉट प्रोडक्ट. सो इफ आई टेक द सेल्फ डॉट प्रोडक्ट ऑफ दिस एक्सप्रेशन, व्हाट एम आई गोइंग टू गेट देयर? टेल मी. इसका सेल्फ डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू इसका सेल्फ डॉट प्रोडक्ट, मतलब इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर. यस और नो? Because self dot product is square of the magnitude. A bar dot a bar is equal to modulus of a bar का square or modulus of a का square or simply a square. Self dot product is square of the magnitude. Understood? तो यहाँ पर क्या आएगा? a square plus 2 times a bar dot b bar plus b square is equal to a square plus minus a bar dot b bar plus b square. वेल दोनों तरफ से ए स्क्वायर और बी स्क्वायर गेट्स कैंसल, तो इट विल बी 2 टाइम्स ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू माइनस 2 टाइम्स ए बार डॉट बी बार. तो 2 भी कैंसिल हो जाएगा. अब माइनस है, इधर आके प्लस हो जाएगा. सो ए बार डॉट बी बार प्लस ए बार डॉट बी बार इज 2 टाइम्स ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू 0. मतलब ए बार डॉट बी बार इज 0. दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट अगर 0 होता है तो एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री. करेक्ट ना? क्योंकि ए बार डॉट बी बार इज नथिंग बट ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू 0. अब ये 0 नहीं है, ये 0 नहीं है, तो कॉस थीटा 0 आएगा. कॉस थीटा 0 आने का मतलब है थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री और पाई बाय 2 रेडियन. सो व्हाट इज थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2 रेडियन. सो व्हाट्स द आंसर हियर? डी. इज दिस क्लियर टू ऑल? एनी डाउट्स? क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन. गौर से देखिए, यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ किया मैंने. इफ ए बार एंड बी बार आर टू यूनिट वेक्टर्स inclined to x axis at an angles of 30 degree and 120 degree. A bar is inclined at to x axis at 30 degree and B bar is inclined to x axis at 120 degree. 30 and 120. ठीक है. और दोनों के दोनों यूनिट वेक्टर्स है. यूनिट मतलब इसका मैग्नीट्यूड भी 1 है और इसका मैग्नीट्यूड भी 1 है. इज दैट अंडरस्टूड? ठीक है. देन व्हाट इज मॉड्यूलस ऑफ ए बार प्लस बी बार इक्वल टू, अब देखिए ये ऐसा है कि एक्चुअली दिस इज अ स्क्वायर. क्यों? क्योंकि ये 90 डिग्री हो जाएगा. आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग देयर? ये 1 है और ये 1 है एंड ये 90 डिग्री है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा ए बार प्लस बी बार बाय यूजिंग द रेक्टेंगल. ग्राफिकली यहां पर दिया हुआ है. समझ में आ रहा है क्या? व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए बार एंड बी बार? ए बार एंड बी बार जो एंगल जो है वो 90 डिग्री है. देयरफॉर ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू 0. डू यू अंडरस्टैंड दैट? समझ में आ गया? अब मुझे ए बार प्लस बी बार चाहिए. अगर पैरेललोग्राम लॉ याद है आपको? डू यू रिमेंबर द पैरेललोग्राम लॉ?
कि भाई इफ दिस इज वन वेक्टर and this is other vector, then complete the parallelogram and this will be the resultant. Yes or no? ये तुम्हारा रिजल्टेंट आएगा. तो इसी प्रकार ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, ये उसका रिजल्टेंट आएगा, है कि नहीं? बराबर है क्या? तो दिस इज ए बार प्लस बी बार. अब मुझे उसका मैग्नीट्यूड चाहिए. वैसे देखा जाए तो ये एक्चुअली इक्वल आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है, बिकॉज दिस इज आल्सो वन और ये वन है तो ये भी वन होगा और ये वन वन, तो दिस विल बिकम डायरेक्टली रूट टू. बराबर ना? तो आई कैन डायरेक्टली से दिस इज आंसर ग्राफिकली. डिड यू अंडरस्टैंड दैट? ग्राफिकली. अगर मुझे मैथमेटिकली या फॉर्मूले से प्रूव करना है तो कंसिडर ए बार डॉट बी बार का ब्रैकेट स्क्वायर, मतलब सेल डॉट प्रोडक्ट. तो ये कितना आएगा? दिस इज ए स्क्वायर 2 टाइम्स ए बार डॉट बी बार. अब दोनों के अंदर एंगल 90 डिग्री है तो ए बार डॉट बी बार इज 0, तो ये तो 0 हो गया. सो दिस इज ए स्क्वायर. अगर यूनिट वेक्टर है तो दिस इज 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू 2. टेकिंग द स्क्वायर रूट ऑफ दिस, व्हाट आई गेट देयर? दिस इज इक्वल टू रूट 2. सो व्हाट्स द आंसर हियर? बी इज द आंसर. इज दिस क्लियर टू ऑल? दिस वाज वेरी इजी एक्चुअली. दिस वाज वेरी इजी. अंडरस्टूड? हेलो. अगला क्वेश्चन. If the angle between I plus K, I plus J plus AK is pi by 3, let me call this vector as P bar and this vector as Q bar. तो इन दोनों का एंगल जो है, the angle between them is pi by 3. Then the value of A is okay. अगर ये है P, if this P bar is nothing but I plus K, then what is P is equal to square root of क्या आएगा बताइए? Px square plus Py square plus Pz square. राइट ना? इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा? देवा प्लीज बताओ यार. हाउ डू आई फाइंड आउट मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर? दिस इज 1i प्लस 0j प्लस 0k. इसका मैग्नीट्यूड आएगा 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर. सो दैट इज इक्वल टू रूट 2. अंडरस्टूड? अच्छा, क्यू बार इज i प्लस j प्लस ak. इसका मैग्नीट्यूड है स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर plus a square. That means this magnitude is equal to square root of a square plus 2. Yes or no? अब इसका डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं. px के i plus py j plus pz के plus px dotted with this. तो क्या आएगा? What is this? This is nothing but 1i plus 0j plus 1k is dotted with I plus j plus ak. Now let us take the dot product. 1 into 1. समझ में आ गया क्या? Plus 0 into 1 plus 1 into a. So that is equal to 1 plus a. P bar dot q bar is 1 plus a. Let me call this as equation 1. समझे? Similarly P bar dot q bar का और एक फॉर्मूला देखिए. P bar dot q bar के दो फॉर्मूले हैं. There are two formulae for dot product. उसमें से ये है पहला फॉर्मूला, राइट ना? इज द फर्स्ट फॉर्मूला फॉर P bar dot q bar. और उसी तरह से यहाँ पर और एक फॉर्मूला है तुम्हारे पास P bar dot q bar का, which is given by this. समझे क्या? अब यहाँ पर क्या मुझे P का मैग्नीट्यूड पता है? हाँ पता है. व्हाट इज मॉड्यूलस ऑफ दिस इज रूट 2. Q का मैग्नीट्यूड है a स्क्वायर प्लस 2 रूट 2 स्क्वायर रूट ऑफ दिस. ठीक है ना? एंड cos थीटा आई डोंट नो. cos थीटा मुझे पता नहीं है. नहीं, cos थीटा तो पता है. थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 3. तो cos थीटा मतलब cos ऑफ पाई बाय 3. बराबर है क्या? व्हाट इज cos ऑफ पाई बाय 3? सो दिस विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 2 times a square plus 2 and this is equal to cos of 60 degree. Cos 60 is half. Cos 60 is half. Is that okay? Now this is equation 1 which is P bar dot Q bar and this is equation 2 which is also P bar dot Q bar. So let me equate from equation 1 and 2. What I get there? 1 plus a is equal to half square root of 2 into a square plus 2. Is this clear to all? ये 2 इधर चला जाएगा. सो दिस विल बिकम 2 plus 2a is equal to, रादर इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, 2 into 1 plus a is equal to square root of 2 into a square plus 2. Is that clear to all? Squaring both the sides, I get it as 4 1 plus a bracket square is equal to 2 into a square plus 2. Well, 2 जा गया. Now I have to solve this for a. क्या आएगा बताइए? This will become 2 inside the bracket 1 plus 2a plus a square is equal to a square plus 2. Is that okay? Open the brackets. This will become 2
प्लस 4a प्लस 2a², ये इधर आके बनेगा -a², दिस इज -2 इज इक्वल टू 0। इज दैट ओके? आगे बढ़ते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। हम क्या आएगा ये बताइए। दिस इज गिवन 2a² - a² इज सिंपली a² प्लस 4a, और ये तो कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। टेक a कॉमन, a प्लस 4 इज इक्वल टू 0, and this will give me a is equal to 0 or a is equal to -4, and that's the answer. A is equal to 0 or a is equal to -4, B is the answer. Any doubts about that? This was a little different question, थोड़ा सा अलग टाइप का था। Any doubts about that? अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ठीक है, देखिए क्या दिया है यहाँ पे। It's a star question. Length of longer diagonal of the parallelogram constructed on longer diagonal. This is very important. Longer diagonal बोला है। Length of longer diagonal on the parallelogram constructed on this 5a bar plus 2b bar and a bar minus 2b bar. If it is given that a bar is 2 root, modulus of a bar is 2 root 2, modulus of b bar is 3, the angle between a bar and b bar is pi by 4 is, देखिए एक वेक्टर को मैं बोलूंगा p बार और दूसरे को मैं बोलूंगा q बार। समझ में आ गई बात? I'll call this as p bar and q bar. अब p बार और q बार का अगर पैरेललोग्राम बनाए तो उसका लॉन्गर डायगोनल ये होगा शायद, है ना, दिस रेड वाला। ग्रीन वाला तो शॉर्टर डायगोनल होगा, ग्रीन वाला तो शॉर्टर डायगोनल होगा। डू यू अंडरस्टैंड दैट? तो मुझे इसका मॉड्यूलस चाहिए, लेंथ चाहिए, मतलब इसका मैग्नीट्यूड चाहिए मुझे। डिड यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन? क्वेश्चन समझ में आ गया? बट इट इज गिवन दैट p bar is equal to 5a bar plus 2b bar and q bar is equal to a bar minus 3b bar। समझे? तो इसलिए मैं पहले a बार के बारे में क्या बताया गया देखते। a बार डॉट b बार इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। a बार का मैग्नीट्यूड है 2 रूट 2, b बार का मैग्नीट्यूड है 3, and cos of the angle between them is 1 upon root 2, cos of pi by 4। सही है ना? 45 degree, 1 upon root 2, 1 upon root 2 gets cancelled। So what is a bar dot b bar is equal to, रे बाबा, 6। Is that understood? Is that clear? समझे? ठीक है। अच्छा, अब मैं इस a बार p बार प्लस q बार को कंसिडर करता हूँ। So I'll consider what is p bar plus q bar। if I consider this p bar plus q bar, तो क्या मिलेगा मुझे यहाँ पे? कंसिडर p bar plus q bar, 5a bar plus 2b bar plus this, ये क्या मिलेगा बताइए? 5a bar plus a bar is 6a bar। This is actually 5a bar plus 2b bar plus a bar minus 3b bar। तो कुल मिलाकर 5a bar plus a bar is 6a bar, 2b bar minus 3b bar is minus b bar। अंडरस्टूड? अगर ये है तुम्हारा p बार प्लस q बार, तो लेट अस टेक द सेल्फ डॉट प्रोडक्ट ऑफ दिस। तो इसका सेल्फ डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा? इसका स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड, मतलब मॉड्यूलस ऑफ 6a बार माइनस b बार का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर क्या आएगा? 36a² माइनस 6 2 जा 12, 12 टाइम्स a बार डॉट b बार प्लस b²। समझ में आ गया? डिड यू अंडरस्टैंड दिस स्टेप? ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस स्टेप? Now what is a? Modulus of a bar is 2 root 2, तो a square क्या हो जाएगा? This will become 36 times a 2 root 2 का स्क्वायर आएगा 2 2 जा 4, 2 root 2 का स्क्वायर minus 12 times a bar dot b bar we have already calculated, it is 6 plus b square आएगा इस 3 का स्क्वायर। तो कुल मिलाकर आएगा 36 2 जा ये क्या आएगा रे? 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 into 6, 288 माइनस 72 प्लस 9, कितना आएगा ये? 288 में से 72 गया, कितना बचा? सो व्हाट इज मॉड्यूलस ऑफ, ये कितना आएगा?
225। अगर ये इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर रूट कितना आएगा? 15। 15 आ गया ये, ठीक है। अब ये एक आंसर है, बट आई डोंट नो वेदर दिस इज, मुझे नहीं पता ये स्मॉलर है कि लॉन्गर डायगोनल है, तो फिलहाल मैं इसको कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन ये एक आंसर तो है। दिस इज वन ऑफ द आंसर्स आई वुड से। डिड यू अंडरस्टैंड दैट? बट ये मुझे लॉन्गर ही डायगोनल चाहिए, वो ये वाला भी हो सकता है, ये वाला भी हो सकता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? ठीक है। अच्छा, अभी अगर मुझे इसके दूसरे डायगोनल के बारे में पता करना है, आई डोंट नो वेदर ये डायग्राम इस तरह का है या इस तरह का है। समझ में आ गया बात? तो मैं दोनों डायगोनल्स का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लूंगा। आई फाइंड आउट दोनों डायगोनल्स का मैग्नीट्यूड। तो ये तो हो गया तुम्हारा पी बार प्लस क्यू बार, और ये दूसरा डायगोनल है, अगर वो मुझे पता करना है तो इट विल बी पी बार प्लस आर बार इज इक्वल टू क्यू बार। आई विल राइट पी बार प्लस आर बार इज इक्वल टू क्यू बार। अंडरस्टूड? दैट मीन्स व्हाट इज आर बार इज इक्वल टू क्यू बार माइनस पी बार। दिस इज क्यू बार। व्हाट इज दिस क्यू बार? दिस इज ए बार माइनस 3b बार माइनस 5a बार प्लस 2b बार। सही है। तो a बार माइनस 5a बार इज माइनस 4a बार माइनस 3a बार माइनस 2b बार इज माइनस 5b बार। ठीक है। अब मुझे इसका लेंथ चाहिए तो इट इज मॉड्यूलस, तो इसके लिए मुझे इसका सेल्फ डॉट प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। सो इफ आई टेक द सेल्फ डॉट प्रोडक्ट ऑफ दिस, इसका सेल्फ डॉट प्रोडक्ट अगर मैं ले लेता हूं तो क्या बन जाएगा बताइए? दिस विल बिकम 4 4 जा 16a स्क्वायर, इजंट इट? माइनस लिखो या प्लस लिखो? देखिए, अगर आपको चाहिए तो यहां से मैं माइनस अगर कॉमन ले लूं तो दिस विल बिकम 4 टाइम्स a बार प्लस b बार 5a बार, और स्क्वेयरिंग के दौरान वो माइनस साइन चला जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग देयर। तो इसलिए मुझे माइनस कंसीडर करने की जरूरत ही नहीं है। दिस विल गो व्हेन आई विल स्क्वायर इट। सो 16a स्क्वायर प्लस 5 4 जा 22 जा 40 a बार डॉट b बार प्लस 25b स्क्वायर। सही है। 16 a square is 2 root 2 का स्क्वायर, 2 2 जा 4 2 जा 8 प्लस 40 a बार डॉट b बार is 6 प्लस 25 b square which is 3 square is 9. Understood? So this is 128 plus 240 plus 225. So this will be giving me 8 and plus 13 1 दोनों 4 अंदर 6 दोनों 8 4 अंदर 6 593. So this is equal to 593. इसका स्क्वायर रूट कितना आएगा रे? स्क्वायर रूट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 593. देखिए, दो डायगोनल्स की अगर मैं बात करूं तो ये है एक डायगोनल जिसका स्क्वायर है 225 और इसका स्क्वायर है 593। तो दोनों में से कौन सा लॉन्गर और कौन सा शॉर्टर है? दिस इज लॉन्गर डायगोनल एंड दिस विल बिकम स्मॉलर डायगोनल और शॉर्टर डायगोनल। इज दिस क्लियर टू ऑल? दिस विल बी योर शॉर्टर डायगोनल। एनी डाउट्स अबाउट दैट? शॉर्टर डायगोनल, तो लॉन्गर डायगोनल स्क्वायर रूट ऑफ 593 विल बी योर आंसर। सो दिस इज द आंसर सी। फिर आपका सवाल होगा कि भाई ये दिखने में ऐसा क्यों दिख रहा है फिर शॉर्टर? ऐसा सवाल हो सकता है आपका, व्हाई इट इज लाइक, क्योंकि हमने उस पी बार और क्यू बार का जो एंगल है वो हमने ऐसा एज्यूम किया है, लेकिन पी बार और क्यू बार का एंगल ऐसा भी तो हो सकता है। दिस इज पी बार एंड क्यू बार, तो इस वजह से, क्योंकि मुझे ए बार और बी बार का एंगल पाई बाय 4 बताया है, लेकिन पी बार और क्यू बार का जो एंगल है, सो इट कैन बी लाइक दिस, दिस इज पी बार एंड दिस इज क्यू बार। तो ये पी बार प्लस क्यू बार बिकम शॉर्टर डायगोनल एंड ये जो है दिस विल बिकम लॉन्गर डायगोनल। सो एक्चुअल डायग्राम इज लाइक दिस, जो कि हमने उसको ऐसा एज्यूम किया था। इजंट इट? समझ में आ गई बात? That's why this appears to be the shorter diagonal which will be actually the longer diagonal. तो एक्चुअल डायग्राम इस प्रकार होगा, इसलिए ये स्टार प्रॉब्लम है। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। एनी डाउट्स अबाउट दैट? इज दैट वेरी क्लियर? समझ में आया सबको? नहीं, मैंने एक ही तरफ से सॉल्व किया है। मैंने जो एज्यूम्ड डायग्राम है उसको मैंने करेक्ट करके ऐसा कर दिया। आप ऐसा भी एज्यूम कर सकते हो, तो फिर आपको करेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इज दैट क्लियर? समझ में आ गई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स प्रोसीड फर्दर नाउ। अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर जी।
Question number 46. If A bar dot B bar dot C bar are unit vectors, A bar dot B bar dot C bar, actually it's a valid question नहीं है ये. 46. Dot नहीं है वो actually. A bar, B bar and C bar are unit vectors. There is no dot. ये सिर्फ यूनिट वेक्टर्स है. देन मॉड्यूलस ऑफ ए बार माइनस बी बार ब्रैकेट स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर डज नॉट एग्जिस्ट एक्सीड. देखिए अगर ये यूनिट वेक्टर्स है, अगर ये यूनिट वेक्टर्स है, देन ए बार बी बार प्लस बी बार प्लस सी बार ऐसा हो सकता है या इससे बड़ा भी हो सकता है. आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग दैट ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार ये इस तरह से हो सकता है, or I can say a bar plus b bar plus c bar. It can be this is a bar plus this is b bar plus this is c bar. Are you understanding what I'm saying there? अगर ये a bar है, भाई ये b bar है and ये c bar है, तो ये a bar plus b bar plus c bar का ये मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू है ये. और अगर फिर वो उसको मैं अलग अलग तरीके से उसको रखता जाऊंगा तो ये उसका मिनिमम वैल्यू है 0. आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग देयर? सो इसका मिनिमम वैल्यू क्या है? ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार का मिनिमम वैल्यू इज दिस इज द मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू ऑफ ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार, मतलब ये इज इक्वल टू 0 और उसका मैक्सिमम वैल्यू 3 है because this is 1 plus 1 plus 1. Are you understanding what I am saying there? समझ में आ रहा है? तो ये a bar मॉड्यूलस ऑफ a bar plus b bar plus c bar का मिनिमम वैल्यू 0 है, तो इट विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0. यस और नो? हमेशा उसका वैल्यू 0 से बड़ा ही होगा, उसका स्क्वायर भी 0 से ही बड़ा होगा. तो अगर मैं इसको स्क्वायर कर लूंगा तो ये आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर 2 टाइम्स a bar डॉट b bar डॉट c bar डॉट a bar इज ग्रेटर देन 0. यस और नो? अच्छा, लेकिन a is 1, b is 1, c is 1, तो इसका स्क्वायर भी 1 1 1 हो जाएगा, है ना? ये 1 प्लस 1 प्लस 1 इधर जाके क्या बन जाएगा? -3. और ये 2 उसको डिवाइड करेगा तो क्या बन जाएगा? प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू. सो दिस विल गिव मी देयरफॉर 2 टाइम्स a बार डॉट b बार प्लस b बार डॉट c बार प्लस c बार डॉट a बार will be always greater than or equal to 1 plus 1 plus 1, that is -3. That means अगर ये 2 इधर चला जाएगा, so this is greater than or equal to -3/2. Is that understood? Is that very clear? समझ में आ गया? अब मेरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं मैं. Then this does not exceed. अभी मुझे इसको स्क्वायर करना है, तो इसको सेल्फ डॉट प्रोडक्ट ले लूंगा तो इट विल बी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a बार डॉट b बार, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2b बार डॉट c बार, c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2 c बार डॉट a बार. अब इसका वैल्यू मुझे चाहिए. नाउ व्हाट इज a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, तो दिस इज एक्चुअली 1 प्लस 1 प्लस 1, मतलब 2 टाइम्स, दिस विल बी नथिंग बट 2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, और ये माइनस 2 टाइम्स a बार डॉट b बार प्लस b बार डॉट c बार प्लस c bar dot a bar. I hope this is clear. Now this is nothing but 2 times. What is a square plus b square plus c square? It is 3. सही है? Minus 2 times. This is, हाँ, अब ये greater than or equal to है -3/2. Please understand, isn't it? तो ये अगर मैं इसका मिनिमम वैल्यू इसका नहीं, मिनिमम वैल्यू इसका 0 है, लेकिन इसका है -3/2. बराबर है क्या? should be -3/2 मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा. Is that clear? समझे? So this is 3 to the 6 और ये चला गया तो ये क्या बनेगा? +3. So that should be equal to 9. तो ये होगा मिनिमम वैल्यू इसका. Are you understanding what I'm saying? So it will be does not exceed, कितना आएगा ये? It will not exceed 6 plus 3, that is 9. I will say. Is that clear? समझ में आया सबको ये? Is that okay? ये थोड़ा अलग टाइप का था क्वेश्चन. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं.
51 तक पूरे कर लेते हैं आज। द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर विथ द वेक्टर्स this and this are 0, 5 and 8 respectively. Find the vector. Let that vector is xi plus yj plus zk. ठीक है ना? इस वेक्टर को मैं a बार बोलता हूं और इसे मैं बोलूंगा b बार. चेक हियर प्लीज. I'll call this vector is b बार. इस वेक्टर को मैं बोलूंगा c बार और इस वेक्टर को मैं बोलूंगा d बार और assumed vector is a bar. Now what is a bar dot b bar? 0. a bar dot c bar 5. a bar dot d bar 8. सही है? करेक्ट है? समझ में आ रहा है? अभी मुझे डॉट प्रोडक्ट लिखना है तो a बार और b बार का डॉट प्रोडक्ट क्या लिखूं बताइए आप लोग. नहीं 0 नहीं है, वहां पे मुझे लिखना व्हाट इज a बार. इट इज xi प्लस yj प्लस zk इज डॉटेड विथ b बार क्या है i प्लस j माइनस 3k इज इक्वल टू 0. ये क्या बनेगा? विल बी x इंटू 1 प्लस y इंटू 1 प्लस z इंटू माइनस 3 इज इक्वल टू 0. मैं ऐसे सॉल्व करने के लिए जा सकता हूं लेकिन मुझे वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा. उन्होंने क्या बोला है कि भाई ए बार ये है या ये है या ये है, तो आप इसको सीधा सीधा चेक कर लो ना. यू टेक इसका डॉट प्रोडक्ट विद दिस, वो अगर 0 आ रहा है ठीक है. आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट? इंस्टेड ऑफ डूइंग ये जो है ये करने से अच्छा ये मैं करूंगा नहीं. आई विल नॉट गो फॉर दिस. इसलिए मेरे शॉर्टकट है कि अगर ये ए बार है तो लेट अस टेक द डॉट प्रोडक्ट. विल बी 1 प्लस 1 1 into 1 is 1, 1 into 2 2 and this is minus 3. 1 plus 2 minus 3 0. तो ये तो पहला वाला डॉट प्रोडक्ट 0 बराबर आ रहा है ना. पहला वैल्यू क्या आना चाहिए उसका 0, दूसरा वैल्यू क्या आना चाहिए उसका 5 और तीसरा वैल्यू आना चाहिए उसका 8. अब इसका डॉट प्रोडक्ट इसके साथ 5 आना चाहिए. चेक करते हैं. आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग देयर? आई एम चेकिंग द ऑप्शंस हियर वन बाय वन. एक एक करके ऑप्शंस को मैं चेक कर रहा हूं. आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग देयर? तो अगर ऑप्शन ए में चेक करने जाऊं यहाँ पे तो क्या मिल जाएगा? लेट्स सी, लेट्स गो फॉर दिस वन बाय वन और फिर अपने को पता चल जाएगा. ठीक है, चलिए शुरू करते हैं ऑप्शन ए के लिए. तो ऑप्शन ए जिसमें ए बार इज इक्वल टू आई प्लस 2j प्लस k दिया है, तो आई विल चेक इट्स डॉट प्रोडक्ट ए बार डॉट बी बार. क्या बन जाएगा? ए बार डॉट बी बार इज नथिंग बट दिस इज 1 into 1 1 प्लस 2 into 1 is 2 एंड प्लस 1 into माइनस 3 is माइनस 3. कैन आई राइट इट डायरेक्टली? वो 0 है और ये सही है, करेक्ट है. आई चेक नाउ व्हाट इज ए बार डॉट सी बार. क्या आएगा भाई ए बार डॉट सी बार? इट विल बी 1 into 1, सही है ना, प्लस 2 into 3 प्लस 1 into माइनस 2. तो ये कितना आएगा? 1 प्लस 6 माइनस 2, 7 माइनस 2 इज 5 और ये भी सही है. अगला चेक करते हैं व्हाट इज ए बार डॉट बी बार. ए बार डॉट बी बार क्या आएगा? इट विल बी 1 into 2 प्लस 2 into 1 प्लस 1 into 4. So this is 2 plus 2 plus 4 and that is equal to 8 and this is also सही. So that is the answer. बाकी मुझे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ी. I don't need to check also. मुझे चेक भी करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे. Is that clear to all? So what is the answer for question number 50A? Is that clear? सॉल्व नहीं करेंगे, सॉल्व करके भी आपको वही आंसर आएगा. देखिए आपको ये पहला इक्वेशन इधर ये मिल गया, दूसरा इक्वेशन क्या मिलेगा? ए बार डॉट सी बार इज 5. मतलब क्या आएगा? देखिए ए बार डॉट सी बार इज 5. अगर हम इसको xi yj प्लस zk ऐसे बोल देते हैं एंड दिस इज लाइक i प्लस 3j माइनस 2k इज इक्वल टू 5. तो आपको ये मिलेगा x प्लस 3y माइनस 4 सॉरी माइनस 2z इज इक्वल टू 5 और ए बार डॉट बी बार सी बार डी बार से क्या आएगा आपको? 2x प्लस वाई प्लस 4k 4z is equal to 8. This will give me 2x plus y plus 4z is equal to 8. तो ये तीन इक्वेशंस, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकंड इक्वेशन एंड थर्ड इक्वेशन. ये मुझे सॉल्व करते बैठने से अच्छा है मैं सब्स्टिट्यूट करके चेक कर लूं.
आई होप यू गॉट व्हाट आई एम सेइंग देयर. इज दैट ओके? ठीक है, आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 51. दैट विल बी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे टुडे. If a bar, b bar, c bar are three mutually perpendicular, mutually perpendicular मतलब a bar perpendicular to b bar, b bar perpendicular to c bar and c bar perpendicular a bar, मतलब their dot products are zero. Mutually perpendicular का ये मतलब हो गया. करेक्ट है? Vectors of equal magnitude, find the angle between a bar and a bar plus b bar plus c bar. Understood? भाई ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं, ठीक है ना, ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड. यूनिट नहीं दिया है लेकिन इक्वल मैग्नीट्यूड दिया. तो लेट मी से दैट देयर मैग्नीट्यूड इज लैम्बडा. लेट मी से दैट देयर मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू लैम्बडा. सो आई विल कंसीडर a bar plus b bar plus c bar. I'll consider its dot product, self dot product. क्या आएगा बताइए? a square plus b square plus c square plus 2 times क्या आएगा जी? a भी नहीं होते, a bar dot b bar, b bar dot c bar, c bar dot a bar. सही है? अच्छा, by the way, what is a square? Lambda square. b square lambda square, c square lambda square. So is that equal to 3 lambda square? Correct? है ना? And a bar dot b bar is 0, b bar dot c bar is 0 and c bar dot a bar is 0. So this is 2 times 0. सही है? So this is equal to 3 lambda square. Now let's take the square root of this. Square root लेने के बाद ये आएगा root 3 lambda. Any doubts about that? This is modulus of a bar plus b bar plus c bar. समझ में आ गया? समझ में आ गया? अच्छा, p bar dot q bar is equal to pq cos theta. So what is the cos theta का value? Cos theta is equal to p bar dot q bar upon pq ना. ये pq इधर मल्टीप्लाई कर रहा है upon pq. तो if I want the angle between any two vectors, मुझे उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेना चाहिए और उसके मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट से डिवाइड करना चाहिए. I want the angle between a bar and a bar plus b bar plus c bar. So यहां पर मैं a bar और a bar plus b bar plus c bar का डॉट प्रोडक्ट ले लेता हूं, डिवाइड बाय a bar का मैग्नीट्यूड और इसका भी मैग्नीट्यूड. समझ में आ गई बात? डिड यू अंडरस्टैंड दैट? चलिए अब इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है. सो व्हेन आई टेक द डॉट प्रोडक्ट, a bar dot a bar is a square, बराबर है क्या? बट a bar dot b bar is 0, अभी अभी लिखा है इधर, एंड a bar dot c bar is also 0. करेक्ट है? अच्छा, तो ये cos थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा बताइए मुझे? cos थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा मुझे? इट विल बी a स्क्वायर प्लस 0 प्लस 0. अच्छा, व्हाट इज मॉड्यूलस ऑफ a स्क्वायर? मॉड्यूलस ऑफ a बार इज इक्वल टू लैम्बडा. मॉड्यूलस ऑफ a बार इज लैम्बडा. व्हाट इज मॉड्यूलस ऑफ a बार प्लस b बार प्लस c बार इज इक्वल टू रूट 3 लैम्बडा. एंड बाय द वे व्हाट विल बी a स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्बडा स्क्वायर अपॉन रूट 3 लैम्बडा स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3. भाई ऐसा कौन सा एंगल है कि जिसका कोसाइन रेशियो 1 अपॉन, तो ये कॉस को मैं उधर भेज दूंगा. तो व्हाट इज थीटा इज इक्वल टू, इट इज कॉस इनवर्स ऑफ 1 अपॉन रूट 3. इज दिस ओके? व्हाट इज आंसर हियर? ए इज आंसर. ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन था और बहुत अच्छा क्वेश्चन था. आई विल मार्क इट एज अ हाफ स्टार प्रॉब्लम. इज दिस क्लियर टू ऑल? एनी डाउट्स अबाउट दैट? इज दैट वेरी क्लियर? आई थिंक विल स्टॉप हियर टुडे. ओके, आज हम रुक जाते हैं यहाँ पे.